Hello everyone, my name is Dr. Sonal Rajpal. Today I am going to explain what are lenses and the refraction of the light caused by these lenses, and the example of the lenses is convex lens and concave lens. You know, refraction is a phenomena which is shown by the light. लाइट टू फिनोमिना शो करता है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है. एक रिफ्लेक्शन इज द बाउंस बैक ऑफ द लाइट, और रिफ्लेक्शन मिरर शो करते हैं जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं. और जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो लेंसेज शो करते हैं, बिकॉज लेंसेज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड दे शो द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और रिफ्रैक्शन क्या होता है जो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, देर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था हर एक लाइट का एक एनर्जी होता है, एंड एनर्जी ऑफ द लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एंड एनर्जी ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसके पाथ में चेंज होता है. Likewise, when the light goes from rarer to denser medium, तो it will bend towards the normal. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी लाइट एयर से एक ग्लास स्लैब में एंटर करता है विच इज़ अ सॉलिड एंड विच इज़ अ डेंसर मीडियम, तो जो इंसिडेंट रे किसी भी उस पर फॉल करता है ग्लास स्लैब पे, that is called as the incident ray. Means the light which fall on the glass slab, that is called as the incident ray. और जब ये incident ray इस glass slab में enter करता है, it will bend towards the normal. Means there is a change in the path of light, और उस change light को, उस path को हम refracted ray बोलते हैं. So this is called as the refracted ray, because this refracted ray will bend towards the normal when it comes from the air to this glass slab. Likewise, when the light goes from denser to rarer medium, then this refracted ray will bend away from the normal. For example, again I am saying, if there is some light, when it will goes from this glass slab to the air, so this is a incident ray which will fall on this glass slab, and the angle made by the incident ray is called angle of incidence. और जब ये incident ray glass slab से air में enter करता है तो वो जो refracted ray होता है it will bend away from the normal, because there is a change in the path of light. Refraction जब भी होगा तो आपको two media is required. In these two cases, air and glass slab are the two media, because air is a rarer media and the glass slab is a denser media. और हमने आपको ये बताया है जब भी light rarer to denser medium में enter करता है तो the refracted ray will bend towards the normal, and whenever the light goes from denser to the rarer medium, means glass slab to air, the refracted light will bend away from the normal. And lens is a piece of transparent glass which is bounded by the two spherical surfaces. Lenses जो होते हैं वो mirrors के बनते हैं, और lenses are of two types. One is convex lens and one is concave lens. और जो convex lens होता है it is made by joining two convex mirror. जब भी हम two convex mirror को join करते हैं तो that will make a convex lens. Because for example, because in last video I explained this is a convex mirror जिसका bulging outward part हम reflection के लिए use करते हैं, तो वो आपका convex mirror होता है. और अगर हम दो convex mirror को join कर देते हैं तो वो convex lens बनता है. And you see here, this is a convex lens which is formed by joining two convex mirror, and this convex lens is thin at the ends and it is thick at the center. So students, convex lens can be made by joining two convex mirror, and convex lens is thin at the ends and it is thick at the center. Now I am going to explain what is concave lens. हमने लास्ट वीडियो में बताया था कॉन्केव मिरर कैसे होता है. कॉन्केव इट इज़ लाइक अ केव जिसका कर्व्ड इन पोर्शन हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
अगर हम इन कॉन्केव मिरर्स को ज्वाइन कर देते हैं, वेन एवर वी आर ज्वाइनिंग दिस टू कॉन्केव मिरर टुगेदर, इट विल मेक अ कॉन्केव लेंस। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इट इज़ अ कॉन्केव लेंस, इट इज़ थिक एट एंड्स एंड इट इज़ थिन एट द सेंटर। तो जो भी कॉन्केव लेंस होते हैं वो कॉन्केव मिरर्स को ज्वाइन करके बनते हैं, और दे दिस concave lens is thick at ends and it is thin at the center. Now the next question, what is the optical center and the principal axis of the lens? कि optical center क्या होता है? Optical center is the center point of any lens. It is convex lens or concave lens, it is called as the optical center. Optical center वो point होता है, it is a midway you can say. For example, this is a convex lens. अगर इस लेंस का लेंथ कितना है, अगर आप ये assume करते हैं it is of 20 सेंटीमीटर, जो इसका मिडवे होगा, जो भी लेंस का हाफ होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. और ऑप्टिकल सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय C और you can represent it by O. It is up to you. Likewise, this is a concave lens. तो ये concave lens का if the length of the this concave lens is 20 सेंटीमीटर, इसका जो midway होगा, जिसका center point होगा, that is called as the optical center. तो optical center is the center point of convex lens and concave lens. It is called as the optical center. और हमने आपको स्टूडेंट्स अभी ऊपर बताया है, जो भी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू मिरर्स. कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर का बनता है और कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर्स का बनता है. और बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम द टू मिरर्स, और हमने आपको बताया था जो भी ये मिरर्स होते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव, दे आर अ पार्ट ऑफ सम स्फीयर. तो जो भी आपके लेंसेज होंगे उनका टू ही फोकस होगा और उनका टू ही फोकल लेंथ होगी, बिकॉज दीज आर ट्रांसपेरेंट. दे आर दीज convex mirror, concave mirror are the part of some sphere. That's why these are called as the spherical mirrors. तो अगर आप ये convex lens देखते हैं, ये convex mirror का है, तो it is a part of some sphere. इस side का this is a yellow portion, इसका this is the part of some sphere. Likewise, this is also a part. This is another surface. It is also a part of some sphere. So I just want to say कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ये टू कॉन्वेक्स मिरर का बनता है, तो इसका टू ही फोकाई होगा और टू ही फोकस होगा, बिकॉज दिस साइड का जो आपका फोकस होगा वो आपका लेफ्ट साइड पे होगा, दिस इज फोकस. एंड दिस वाला साइड, बिकॉज दिस इज द लेफ्ट साइड, इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा. तो दिस इज इट हैज two foci, or you can say it has, because it is made up of by joining two mirrors, so it has two focus, one on the left side and another on the right side. और आपको ये भी बताना है कि the distance between the optical center and the focus, that distance is called as the focal length, because optical center it is denoted by C and this is the focus, and the distance between the optical center and the focus, it is called as the focal length. So you can say this FC is a focal length. And one thing I would like to say students, जो focal length, because we have a two focal lengths, because जो भी आपके lenses होते हैं वो transparent होते हैं and it show the phenomena of refraction of light. You can say you can use either side of the lens for the refraction phenomena. तो हर एक लेंस का लेफ्ट और राइट पे फोकस होगा और जो फोकल लेंथ होगी वो दोनों साइड पे सेम होगा. अगर दिस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस इफ इट इज 10 सेंटीमीटर अवे, सो राइट साइड पे भी जो आपका फोकल लेंथ होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेंस में दोनों साइड पे, बिकॉज दिस इज अ कॉन्केव लेंस, बिकॉज आई जस्ट वांट टू से दिस कॉन्केव लेंस इज मेड अप ऑफ
two concave mirror. So I just want to say, so there is a two focus on either side of this concave lens, and this is the optical center, and you can say there is a two foci because this is one focus here left side and this is the another focus. Again I am saying the distance between the optical center and the focus, that distance is called as the focal length, and the focal length is same on either side of this concave lens. If it is 10 centimeter, then here also this distance is 10 centimeter. And what is the principal focus? The line passing through this optical center and cutting this focus on either side of the mirror, that is called as the principal axis. It is not a principal focus, it is called as the प्रिंसिपल एक्सिस. जो भी लाइन इस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को कट करके पास होता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. स्टूडेंट, यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर वन थिंग, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का टू फोकाई होता है ऑन ईदर साइड और सेम डिस्टेंस पे होता है, और हमें हमेशा everything you have to measure on this optical center, and this optical center is the midway or it is the center point of any lens. And what is the principal axis? The line passing through this optical center and the foci of these convex lens and concave lens, it is called as the principal axis of this convex lens and concave lens. Now again I am explaining over here what is the principal axis. The principal axis of the lens is the line passing through the optical center of the lens and it is perpendicular to both the faces of the lens, because जो principal axis होता है वो horizontal होता है और जो आपका lens का faces होता है it is always perpendicular to the faces of the lens. Principal axis is always, it is a kind of horizontal line and it is perpendicular to both the faces of the lens. And what is the principal focus and the focal length of the convex lens? Because convex lens एक converging lens है जो हम आपको आगे बताएंगे. Because why it is a converging lens? Because ये light को converge करता है. It converges the light rays which is parallel to the principal axis at a point on the principal axis when it pass through the lens, and that point is called as the focus. क्योंकि जो भी आपका convex lens होता है students, because this is a convex lens, again I am showing over here, the midway of this lens it is called as the optical center, and this horizontal lines which is passing through these optical centers, that is called as the principal axis. And I explained already, it has two focus, one is on the left side and one is on the right side, and thus they are placed at the same distance. This is the focal length. जो भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और फोकल लेंथ दोनों साइड पे सेम होगा. और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस इसलिए होता है बिकॉज जो भी इंसिडेंट लाइट इस लेंस पे फॉल करता है, बिकॉज इंसिडेंट लाइट आर दैट लाइट विच इज फॉलिंग ऑन दिस लेंस. So it is the incident light which is falling on this convex lens, and these incident light are parallel. These arrows are very important. These incident light are parallel to the principal axis. So when these incident light will goes from the air to this lens, because this lens is a denser medium, and when this incident light is coming out from this denser medium, so there is a change in the path of light when it goes from the denser to the rarer medium. So whenever they will come out from this lens, so there is a change in the path of light, and these rays are called as the refracted ray. So they will meet at a point, that point is called as the focus, and the focus is always a point on the principal axis where these refracted ray meet.
that point is called as the focus, and the distance between the optical center and the focus, that is called as the focal length. And one more thing I would like to say, this is a converging lens. Convex lens is a converging lens and it always has a real focus, because हमने लास्ट वीडियो में बताया था जो भी फोकस रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट की डायरेक्शन में होता है वो हमेशा रियल होगा, बिकॉज हेयर द रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में ये फोकस बन रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज अ रियल फोकस, बिकॉज फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं, तो that point is called as the focus and it is always present on the principal axis. And if the focus is formed in the direction of the refracted ray, that is always a real focus. Is it clear, students? The next topic I just want to say, and why it is a converging, because it will converge the light rays after passing थ्रू द लेंस. जो भी लाइट रेज इस कॉन्वेक्स लेंस को पास करती हैं तो दे विल मीट एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और इसका रियल फोकस होता है बिकॉज जो भी फोकस रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में बनेगा वो आपका रियल फोकस होगा. तो द नेक्स्ट पॉइंट, सो लेंस ऑलवेज हैज अ टू फोकाई and the two foci of the lens are always at an equal distance from the optical center, one on either side of the lens, जो हमने आपको already explain कर दिया है. Then what is the focal length? It is the distance between the optical center and the principal focus of the lens. And now the next, what is principal focus and the focal length of a concave lens? Concave lens is a diverging lens because it will diverge the light rays after passing through the lens. तो ये light rays को diverge कर देता है, तो that's why इसको diverging lens बोलते हैं. और जो भी diverging lens होगा उसका virtual focus होगा, वो हम आपको बताते हैं. Again, this is a concave lens. Half of the lens it is called as the optical center, and the line passing through the optical center, it is a principal axis, and there is a two foci. This is a one on the left side and one on the right side, and these are the incident ray which is falling on this lens. और जब भी आपको एरोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द इंसिडेंट रे जब इस लेंस में एंटर करता है और जब इस लेंस से ये इंसिडेंट रे व्हेन इट विल अगेन come out from this lens and it will go to the rarer medium, so there is a change in the path of light. So these are called as the refracted ray because इसके path में change हो रहा है, तो ये refracted ray है. पर ये refracted ray जो है diverge हो गया. Is it clear? So ये refracted, they are not in one direction, but whenever you just meet this refracted ray backward, अगर हम इस refracted ray को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो दे विल मीट एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस. तो जहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, और ये वर्चुअल फोकस है. वाई इट इज़ अ वर्चुअल फोकस? बिकॉज ये फोकस रिफ्लेक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है. दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट. जो भी रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में फोकस बनता है वो रियल, और जो भी रिफ्रैक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोकस बनता है वो आपका वर्चुअल फोकस होता है. और लेंस में वर्चुअल फोकस हमेशा लेंस के आगे बनेगा और रियल फोकस हमेशा पीछे बनता है. और दिस कॉन्केव लेंस में जो आपका फोकस बनता है वो रिफ्रैक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, मीन्स दैट इज अ वर्चुअल फोकस. और वर्चुअल फोकस इज ऑलवेज फॉर्म्ड in front of the lens, or it is a diverging lens because it diverge the light after passing through this
कॉन्केव लेंस, इसने लाइट को बिखार दिया है, इसने उसको स्प्लिट कर दिया है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस। और हमने ऊपर आपको बताया था कॉन्केव लेंस वो लेंस होता है जब भी लाइट उसके ऊपर पड़ता है, तो जब भी लाइट उस लेंस से पास होता है तो वो सारा का सारा रिफ्रैक्टेड रेज को इट विल meet all these refracted ray at one point. So that's why it is called as the converging। और इसका रियल फोकस क्यों है? क्योंकि जो भी रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में फोकस बनता है वो रियल, और लेंस में पीछे रियल फोकस है और लेंस के आगे वर्चुअल फोकस होगा। तो जो भी फोकस आगे बनेगा लेंस में वो हमेशा वर्चुअल होगा और वो डाइवर्जिंग लेंस बनाते हैं। और जो भी लेंस के पीछे फोकस कोई भी बन रहा है जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही है वो हमेशा रियल फोकस होगा। सो कॉन्केव लेंस इज अ diverging lens and convex lens is a converging lens. Again, the principal focus of a convex lens is a point on the principal axis from which the light ray which is parallel to the principal axis they will diverge after passing through the lens। और जितना भी diverging lens होता है उसका virtual focus होता है। Again student, virtual focus लेंस के आगे होता है और रियल फोकस लेंस के पीछे होता है। Again I am going to talk about more on focus. Convex lens always has a real focus and concave lens always has a virtual focus, and the real focus is formed behind the lens and the virtual focus is formed in front of the lens। और focus वो point होता है जहाँ पर refracted ray meet करती है, and it is always a point on the principal axis। And what you need to remember, the focus is a point where these refracted ray meet, and the focus which is present in the direction of refracted ray that is called as the real focus। और उस केस में आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, बिकॉज हमने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि जहाँ पर भी जितना भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है, बिकॉज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, half of this lens it is called as the optical center। Line passing through the optical center is the principal axis, and these are the incident ray which will fall, which will enter into this lens। और जब ये incident ray इस lens से बाहर आता है तो they will converge and they will meet at one point, and that point is called as the focus। तो वो फोकस है, और जहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड रे मीट करती है अपनी डायरेक्शन में तो उसको हम रियल फोकस बोलते हैं। और फोकल लेंथ वो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और इस केस में आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। बिकॉज स्टूडेंट्स हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो भी चीज़ whatever you have to measure, first of all you have to measure from the optical center, और जो भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होता है हमें उसको पॉजिटिव साइन देना है। एंड यू नो this focal length it is always in the direction of incident ray। is it clear? तो इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है। और आप ये भी कह सकते हैं जो भी लेंस के फ्रंट में होगा वो नेगेटिव साइन देना है, और जो भी लेंस के पीछे बनेगा वो आपका पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन मिरर में भी यही था, जो भी मिरर के आगे था वो नेगेटिव, जो मिरर के पीछे है वो पॉजिटिव। और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है जो भी चीज़ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होता है हमें उसको पॉजिटिव साइन देना है, और हमें हर चीज़ को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना होता है। Likewise, this is a concave lens, this is a concave lens, और concave lens एक diverging lens है। Again I am going to show over here। So this is half of the lens, it is called as the optical center। Line passing through the optical center is a principal axis, and you know it is an incident ray which is entering into this concave lens। This is an incident ray, और जब इंसिडेंट रे इस लेंस से बाहर आता है तो देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, दीज आर द रिफ्रैक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग मिरर। एंड यू नो दिस रिफ्रैक्टेड रे अपनी डायरेक्शन में कहीं भी मीट नहीं करेगा, बट वेन एवर यू जस्ट प्रोड्यूस दिस रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड दो दे विल मीट समवेयर हेयर।
तो जहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे मीट करता है उसको फोकस बोलते हैं, और इसको हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं। क्यों वर्चुअल फोकस बोलते हैं? बिकॉज ये रिफ्रैक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, मीन्स दैट इट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, और जो भी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होता है फोकस के बीच का उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये फोकल लेंथ जो होगी नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। और यू कैन से वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ एनी लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, आपको उसको नेगेटिव साइन देना है, और जो भी चीज़ पीछे बनती है आपको उसको पॉजिटिव साइन। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन हमें ये बताता है कि अगर कुछ भी आगे बन रहा है नेगेटिव, कुछ भी पीछे है पॉजिटिव। और वर्चुअल फोकस हमेशा लेंस के आगे होता है और रियल फोकस हमेशा पीछे होता है। और सेकंड थिंग अगेन हम एक्सप्लेनिंग रियल फोकस को आपको कैसे जज करना है। तो जो भी रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर मीट करती है, पहली बात तो उसको फोकस बोलते हैं। और जो भी फोकस रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में बनेगा रियल, और जो भी फोकस रिफ्लेक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है वो हमेशा वर्चुअल फोकस होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इमेज। इमेज कौन बनाता है? रिफ्रैक्टेड रे। बिकॉज मिरर्स में हमने बताया था इमेज कौन बनाता है? रिफ्लेक्टेड रे। तो आपका लेंसेज में इमेज कौन बनाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। एंड इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इट इज ऑलवेज अ रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी इमेज रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में होता है, जैसे मैंने बोला ना फोकस रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में होगा रियल, तो इमेज भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और जो भी इमेज is formed opposite to the direction of refracted ray it is always virtual and direct। जैसे हमने आपको बताया कि जो भी फोकस रिफ्रैक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वर्चुअल, तो जो भी इमेज रिफ्रैक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आर द कंपैरिजन बिटवीन मिरर एंड लेंस, बिकॉज बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है लेंस और मिरर्स में। बिकॉज मिरर्स हमेशा रिफ्लेक्शन शो करता है, बाउंस बैक, और लेंस हमेशा रिफ्रैक्शन शो करता है। देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एंड मिरर्स, जो भी मिरर्स में आगे होता है, बिकॉज मिरर में भी इमेज रिफ्लेक्टेड रे बनाता है और लेंस में रिफ्रैक्टेड रे, और मिरर में आगे रियल वर्ल्ड है और पीछे वर्चुअल वर्ल्ड है, और लेंस में आगे वर्चुअल वर्ल्ड होता है और पीछे रियल वर्ल्ड होता है। बिकॉज लेंस रिफ्लेक्शन शो करते हैं और मिरर रिफ्लेक्शन शो करते हैं। और हमने आपको क्या बताया, इमेजेस कौन बनाता है? मिरर में रिफ्लेक्टेड रे और लेंस में रिफ्रैक्टेड रे। और जो हमारे कॉन्केव मिरर्स होते हैं दीज आर कॉन्वर्जिंग मिरर, और लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग होता है। एक कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे वो आपका कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, बोथ आर कॉन्वर्जिंग। तो जो भी कॉन्वर्जिंग लेंस और मिरर होते हैं उनका रियल फोकस होता है। द ओनली डिफरेंस, मिरर में रियल वर्ल्ड आगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव, और लेंस में रियल वर्ल्ड पीछे तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और हमारा कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है। वन कॉन्सेप्ट इज सेम, चाहे लेंस है चाहे मिरर है, कोई भी डाइवर्जिंग होगा तो उसका वर्चुअल फोकस होगा। बट द ओनली डिफरेंस, अगर मिरर है, मिरर में पीछे वर्चुअल वर्ल्ड होता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, लेंस में आगे वर्चुअल वर्ल्ड होता है तो आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव। And mirror formula is 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F, and the lens formula is opposite, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. And the magnification in case of mirror, whenever I am going to explain to my students, अगर मिरर में ये 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है तो मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू होगी मिरर में, और लेंस में 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो जो आपका मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा v अपॉन यू। एंड यू ऑल आर अवेयर v इज अ इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज मिरर्स और लेंस से कितनी दूरी पे बन रहा है, और u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मिरर और लेंस से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है। और मैग्निफिकेशन हमें नेचर के बारे में बताती है कि जो आपका मैग्निफिकेशन है वो नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताती है
कि इमेज छोटा है, बड़ा है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो कॉमन कंसेप्ट, जो आपके कॉन्सेप्ट कॉमन है मिरर और लेंसेज के लिए, जब भी आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन यू, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, लेंस और मिरर में हम ये यूज़ करते हैं। तो जब भी आप मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इट मीन्स रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। और जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, आप कोई भी फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, ओके। तो देन इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मिरर फॉर्मूला आपको पता है कि 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और मैग्निफिकेशन मिरर में माइनस वी अपॉन यू होगा। और लेंस में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दिस इज अ लेंस फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन लेंस में प्लस वी अपॉन यू होगा, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। मैग्निफिकेशन का नेगेटिव होगा वैल्यू तो इट कुड बी रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव वैल्यू होगा तो इट कुड बी अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो कॉन्सेप्ट आपके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है मिरर और लेंस में, मिरर में आगे रियल वर्ल्ड है, पीछे वर्चुअल है, बिकॉज जो भी इमेज पीछे बनेगा मिरर में वो वर्चुअल है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, वर्चुअल मीन्स वर्ल्ड। और लेंस में आगे वर्चुअल वर्ल्ड है और पीछे रियल वर्ल्ड है, बिकॉज लेंस रिफ्रैक्शन करता है और मिरर रिफ्लेक्शन करता है। और जो आपके कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है, अगेन कोई भी कॉन्वर्जिंग, वेन एवर यू हैव द वर्ड कॉन्वर्जिंग, चाहे वो लेंस चाहे वो मिरर, तो इट हैज़ अ रियल फोकस। और डाइवर्जिंग चाहे वो लेंस है मिरर है, इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। द ओनली डिफरेंस, मिरर में वर्चुअल वर्ल्ड पीछे होता है और लेंस में वर्चुअल वर्ल्ड आगे। और कॉन्वर्जिंग का जिसका रियल फोकस होता है, मिरर में रियल वर्ल्ड आगे और लेंस में रियल वर्ल्ड पीछे, तो इसलिए आपके साइन चेंज हो जाते हैं। और जो इमेजेस होते हैं, इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे इन मिरर and by the refracted ray in lens. Again concept same, if the magnification value is greater than 1 means enlarged image is formed, height of the image is greater than height of object. If the magnification value is less than 1 so it means diminished image is formed, means height of the image is less than the height of the object. और अगर magnification का value 1 है तो it means image height is same as that of the object height. So these concepts are same for both mirror and lenses. And in conclusion I want to say, दुनिया में या कहीं पे भी, आई कैन से इन फिजिक्स सॉरी, तो जो भी कॉन्वर्जिंग लेंस है, मिरर है, दे हैव अ रियल फोकस। एंड इन कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, तो उनका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। And the majority of the images formed by the converging lens or mirror are real and inverted, except one case where the virtual and erect image are formed by the converging lens or mirror, and this virtual and erect image formed by this converging lens is of enlarged size. That is a very बहुत बड़ा इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जब भी आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के बारे में सोचना है, बिग साइज, वो हमेशा कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर ही हो सकते हैं। और जो भी डाइवर्जिंग लेंस और मिरर होते हैं उनका वर्चुअल फोकस होता है। और कॉन्केव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है और उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग है और मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। And all images formed by this diverging lens or mirror are virtual, erect and of diminished size. Thank you. If you like my video, please subscribe my channel Science Classes at the rate Dr. Sonar Rajpal 123. In my next video, I am going to explain how the images are formed by this convex lens and concave lens by using the phenomena of refraction of light.